हाँ जी प्यारे साथियों, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਪ ਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟ 1 ਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ NCERT ਦਾ ਡਾਟਾ पूरा कॉपी मतलब कि मैं वन लाइनर कड्डे हुए आ NCERT ਦੀਆਂ किताबां पढ़ के 6वीं 7वीं ते 8वीं। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਪਾर्ट 1 ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ 6 ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ 6 ਕਲਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ NCERT ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ NCERT हाँ ठीक आ NCERT ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲਾ वन ਲਾਈਨਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। वन ਲਾਈਨਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਤੀਜਾ ਚੈਪਟਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦੀਦੀ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਲਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ, NCERT ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮਿਕਸ ਅਪ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਗਲੋਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ, ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਅਪ ਜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, मैं पंजाबी च भी नाल एक्सप्लेन करूंगी। ओके, पहला क्वेश्चन, ग्लोब पर स्थित वो दो बिंदु जिन पर पृथ्वी झुकी हुई होती है क्या कहलाते हैं? अक्ष। हिंदी दे विच इन्हां ने किवें लिखिया वा, एवें करके इन्हां ने हिंदी दे विच लिखिया वा अक्ष, पर पंजाबी दे विच आपां इन्हां नूं की बोलदे आ? तुरे। ठीक है, नाल दी नाल मैं लिखती जानी है। ठीक है, पृथ्वी किस दिशा में अपनी धुरी पर घूमती है? पश्चिम तो पूर्व। आप पढ़ते हैं ना। ठीक है, असा आप इंज करिए, आप विरला ना लिखिए। ठीक है, अपना पहला की हैगा सीगा हिंदी दे विच उन्होंने लिखिया अक्ष, पंजाबी दे विच अपना की बन गया तुरे। असा दूजे क्वेश्चन ते आ जाओ, किस दिशा से अपनी धुरी पर घूमती है? पश्चिम तो पूर्व। ठीक है, उन्होंने लिखिया वा पश्चिम से पूर्व, आप के लिखांगे पश्चिम तो पूर्व। ये तो आपां नूं पता ही है, चलो ये तो ईजी है, सुनते जाओ पॉइंट। ठीक है, वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा इन्हां ने हिंदी दे विच की भूमध्य रेखा यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक है, ये जिहड़ी रेखा वा ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਵਾ ਉਹ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਵਾ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਾਰਧ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? पृथ्वी के उत्तर में स्थित भाग को क्या कहा जाता है? मैं हुणे दसता, आ उत्तरी गोलार्ध आ ते दक्षिणी नूं की कहा जांदा वा? दक्षिणी गोलार्ध। पॉइंट इजी आ, चौथा जिहड़ा वा इजी आ। ठीक है, क्लीयर हो गया? क्योंकि आपां ये भी देखना कि आपां किन्ने क्वेश्चन कर ले। ठीक है, हाँ ये भी सेम ही है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, छेवें ते आ जाओ, छेवें क्वेश्चन ते आ जाओ, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के समांतर रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। हुण उन्होंने कहा वा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੋ ਗਈ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ? ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ੀ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ? ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ੀ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ੀ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੈਟੀਟਿਊਡ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਲੈਟੀਟਿਊਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ? ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਟੈਟ ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੇਟੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ याद रख लो। ठीक है, अच्छा, अक्षांशों को मापा जाता है अंश से, यानी कि तुरियां तो ही मापांगे आपां। अक्षांशां नूं कित्थों मापांगे आपां, तुरियां तो ही मापांगे। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ। ठीक है, 6वां पॉइंट भी हो गया। 7वें पॉइंट ਤੇ आ जाओ। ठीक है, 7वां पॉइंट कहता कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश किस कटिबंध में आते हैं। अच्छा, ये ना, अच्छा अगला क्वेश्चन भी सुन लो। उत्तरी गोलार्ध में कर्वक रेखा एवं उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा व दक्षिणी ध्रुव वेतर बर्फ वेफ बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। शीत उष्ण कटिबंध। एदा मैं तुहानू ना एक डायग्राम बना के दसदी हां, तुहानू चंगी तरह समझ आ जूगी। अच्छा, मैं वीडियो नू पॉज करके बहुत ही सोहनी तुहाडे लई पिक्चर बनाती, क्योंकि ज्यादा टाइम आपां नू ना लगे। हुण आ चीज नू तुसीं समझ गए ना, तुहाडे 7 ਤੋਂ 8 क्वेश्चन हल हो जाने। देखो आ की है साडे कोल, साडा की है ग्लोब। ठीक है, सेंटर दे विच साडी किहड़ी रेखा वा, भूमध रेखा, यानी कि जिहड़ी भूमध रेखा किते है 0 डिग्री ते। भी तुसीं ध्यान रखियो। ठीक है, इहदे नॉर्थ वाली साइड की है कर्क रेखा, किन्ने डिग्री ते है, 23.5 डिग्री। ठीक है, ते मकर रेखा वा साउथ एरिए दे विच। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। आ जिहड़ियां पोजीशनां वा ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ, इन्हां दा भी तुसीं बहुत चंगी तरह ध्यान रखना। इधर देखो, भूमध रेखा ते किहड़ा ताप आ, उष्ण ताप खंड आ। कर्क रेखा ते किहड़ा वा, उप उष्ण ताप खंड आ। आर्कटिक ते किहड़ा वा, शीत उष्ण आ। क्योंकि आ की है साडे पोल ने, आ की ने साडे धुरे ने। हुण कंसैप्ट नूं समझो। मान लो आ साडा की आ, सन, आ साडा सूरज आ। ठीक है, हुण भूमध रेखा ते सूरज दीयां सिद्धियां किरणां पैंदियां। ठीक है, भूमध रेखा ते सिद्धियां जिहड़ियां वा किरणां पैंदियां, इसे करके भूमध वाला जिहड़ा एरिया वा, नॉर्थ ते साउथ। ठीक है, भूमध रेखा वाला जिहड़ा एरिया वा, इत्थे बहुत ही ज्यादा गर्मी हुंदी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी आ। ठीक है, जिन्ने भी देशां दे विच गर्मी आ, वो किहदे विच आउंदे ने, भूमध रेखा दी एरिए दे विच आउंदे ने। क्लीयर। उस तो बाद क्योंकि सूरज दीयां किरणां भूमध रेखा दे कित्थे पै रहीआं वा, सिद्धियां पै रहीआं वा, हना। हुण अगे आ गया कर्क रेखा। हुण जदों कर्क रेखा ते सूरज दीयां किरणां पैणगीआं ते इन्हां ने थोड़ियां जिहियां तिरछियां हो के पैणा। इन्हां ने थोड़ियां जिहियां की पैणा वा, तिरछियां हो के पैणा वा। ठीक है, उधरों नॉर्थ वाली साइड ते कर्क रेखा ते साउथ वाले एरिए ते मकर रेखा ते इन्हां ने थोड़ियां जिहियां तिरछियां हो के पैणा वा, क्योंकि सिद्धियां नहीं पैणियां, तिरछियां हो जाणियां वा। इसे ही करके जिहड़े कर्क रेखा दे विच एरिए पैंदे आ ते जिहड़े मकर रेखा दे विच एरिए पैंदे आ, ओह ना ज्यादा गर्म ते ना ज्यादा ठंडे हुंदे, यानी कि ना उत्थे ज्यादा गर्मी ते ना उत्थे ज्यादा सर्दी हुंदी, मीडियम जिहा उत्थे मौसम हुंदा। इसे ही करके जिहड़ा कर्क रेखा ते मकर रेखा दे विचकार वाला, हुण समझो इस कंसैप्ट नूं, कर्क रेखा ते मकर रेखा दे विचकार वाला जिहड़ा एरिया वा, ओह की आ जाना वा, उष्ण ताप खंड। क्लीयर, समझ लगी। हुण देखो, हुण आ वाले कंसैप्ट नूं समझो। हुण आ जिहड़ा आ अपने धुरे आ, चलो कर्क रेखा ते मकर रेखा ते तिरछियां पै गईयां, भूमध रेखा ते सिद्धियां पै गईयां। ठीक है, पर आ जिहड़ा वा इत्थे जमा नहीं पैणियां, जिहड़े धुरे आ इत्थे सूरज दीयां किरणां पैंदियां नहीं, ना नॉर्थ वाली साइड ते ना साउथ वाली साइड ते। इसे ही करके इत्थे बहुत ज्यादा की रहिंदी है, बहुत ठंड रहिंदी है। इत्थे की रहिंदी है, बहुत ही ज्यादा ठंड रहिंदी है। ठीक है, ते इसे ही करके इनू की कहा जांदा वा, शीत उष्ण खंड भी लिखिया हुंदा वा। ठीक है, आ पिक्चर तुसीं अपनी कापी ते बना लो। ठीक है, ते अगे आपां चलदे हां। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वेफ बीच वेफ क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शीत कटिबंध। हिंदी दे विच उन्होंने लिखा वा शीत कटिबंध, पर आपां पंजाबी दे विच की पढ़ना वा, शीत उष्ण होना। हुण तुसीं आ सुन के घबरा ना जाओ, क्योंकि मैं तुहानूं पंजाबी दे विच बहुत ही सौखे तरीके नाल समझाता। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखावां। ठीक है, मैं तुहानूं दस्सिया सी ना, देखो आ की है, आ साडा ग्लोब आ। उन्होंने कहा वा कि उत्तरी ध्रुव ते दक्षिणी ध्रुव नूं जोड़न वालियां रेखावां किहड़ियां वा। हुण आ की आ,
ਸਾਡੇ ਪੋਲਸ ਆ। ਦੇਸ਼ਾਂਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ? ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜੋੜਤਾ? ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੱਕ ਜੋੜਤਾ। अच्छा क्लियर आ? ठीक है ना, समझ लग गई ना? हाँ जी, अगे 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? इन्होंने लिखा वा प्रमुख यमोंतर रेखा, ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा। मैं तुहानू हुणे दस के गई ना, देखो 0 डिग्री ते साडी केड़ी रेखा वा? भूमध्य रेखा, ठीक है। हाँ जी, अगे प्रमुख यमोंतर रेखा कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच राजकीय वेधशाला से। बस आ फर्क आ NCERT दे विच, क्योंकि असीं अज तक की पढ़दे आए हैं भी लंडन दे विचों ग्रीनविच शहर दे विचों गुजरदी है। पर वेधशाला शब्द जिहड़ा वा तुसीं पहली वारी सुनिया होगा जिन्हां ने NCERT नहीं पढ़ी, ते जे हुण वेधशाला पुछिया जावे ते तुसीं की सी कन्फ्यूज हो जाना तुसीं, क्योंकि तुसीं NCERT नहीं पढ़ी, तुसीं पंजाब बोर्ड वाला डाटा पढ़िया। क्लीयर है ना? प्रमुख हाँ ये तो पढ़ लिया। प्रमुख यमनोत्तर रेखा पृथ्वी को किन 2 समान भागों में विभाजित करती है? 2 भागों दे विच। मैं हुणे तुहानू दस के गई उत्तरी गोलार्ध ते दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। हाँ एक चीज होर जिहड़ी साडी हैगी है ना, ये वाली प्रमुख यमांतर रेखा है ना, मैं आ चीज तुहानू अरेस कर दिन्नी आ। बहुत ही जरूरी पॉइंट आ, जरूर ही तुसीं सुनना वा। देखो ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਆਹ वाला कंसैप्ट ही ना, कर्क रेखा भारत के किन्ने देशों विचों हो के गुजरदी आ, है ना, किन्नियां स्टेटां दे विचों? 8 स्टेटां दे विचों। ये भी डाटा बड़ा पुराना हो गया, इहनूं छड्ड दो, ये नहीं पुछया जांदा। कर्क रेखा भारत के किन्ने देशों विचों लंघदी आ, किन्ने भारत के किन्नियां स्टेटां दे विचों लंघदी आ, ये भी नहीं पुछया जांदा। 7 सिस्टर वालियां स्टेटां इदां दा तुहानूं कुछ नहीं पुछया जाना। ये डाटा बड़ा पुराना हो गया ते बड़ा फेमस हो गया। एडा पागल नहीं एग्जामिनर भी वो तुहानूं इन्ने सौखे क्वेश्चन पाऊगा। हुण वेखो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ लंडन शहर आ, लंडन शहर आ, लंडन दे विच ग्रीनविच ਜਿਹੜਾ एरिया वा, ठीक है, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ प्रमुख की आ मानक रेखा, प्रमुख की आ मानक रेखा, ठीक है। हुण की आ, हुण जे तुहानूं इहदे विचों क्वेश्चन पुछया, तुहानूं ये पता होना चाहिदा वा भी ये किन्ने देशां दे विचों हो के गुजरदी आ, किन्ने देशां दे विचों हो के गुजरदी आ। इहदी मैं तुहानूं ट्रिक भी दस दिन्नी आ। पहला देश तुसीं लिखो घाना, एवें आ देश दा नाम घाना, ठीक है, देश दा नाम आ। दूजा तुसीं लिखो, हाँ दूजा तुसीं लिखो अल्जीरिया, अल्जीरिया, ठीक है, दूजा देश हैगा वा अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया, हाँ ठीक है। तीजा देश तुसीं लिखो टोंगो, ठीक है, टोंगो, टोंगो। चौथा तुसीं लिखो माली, माली, माली देश दा नाम आ, ठीक है। पंजवां तुसीं लिखो, मैं तुहानूं इहदी ट्रिक भी दसूंगी कि तुसीं किवें याद रखना हैगा वा इंग्लैंड, इंग्लैंड दे विचों भी निकलदी है, ठीक है, इंग्लैंड दा शहर ही है लंडन, ठीक है, ये तो सानूं पता होना ही चाहिदा। अगे हैगा वा बिफासो एवें करके आ, ठीक है, देश दा नाम। सतवां हैगा वा स्पेन, सतवां हैगा वा स्पेन ते अठवां हैगा वा फ्रांस। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ट्रिक किवें याद रखनी है? इधर वेखो, घाट में, हाँ मैं इत्थे लिखी सी घाट में BSF, GH तो की आ गया घाना, ठीक है, A तो अल्जीरिया, T तो टोंगो, M तो माली, E तो इंग्लैंड, B तो बिफासो ते S तो स्पेन ते F तो फ्रांस। ये वो 8 देश ने ਜਿਹੜੀ लंडन वाली साडी प्रमुख ਜਿਹੜੀ रेखा वा टाइम लाइन ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਉਹ 8 ਦੇਸ਼। ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਢੇ 82 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 82.5 ਡਿਗਰੀ ਹਨਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ 8 ਦੇਸ਼ ਆ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਉਹ 8 ਦੇਸ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੁੱਲ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾ 360 ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 360 ਤੇ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 181 ठीक है जो स्थान ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है उनके समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रीनविच रेखा के समय आगे होगा मैं तुहानू समझाउणी आ सुन लो पहला जो स्थान ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में स्थित है उन पर समय का क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रीनविच रेखा से पीछे चलेगा कंसेप्ट नू समझो ठीक है आ तुसी लिख लेना वा ठीक है 8 दे 8 देश ਜਿਹੜੇ मैं हुण 2 पॉइंट बोले उन्हां नू समझो देखो ठीक है आ साडे को की आ पूरब ते आ साडे को की आ पश्चिम ठीक है समझो पूर्व दिशा वाल की होगा जिहड़ी साडी पूर्व दिशा वा हना पूर्व दिशा वाल समा जिहड़ा वा प्लस हुंदा वा ठीक है जे जिहड़े देश जिहड़े आ पूर्व दिशा दे विच ने उत्थे समा की होगा अगे होगा ठीक है प्लस ते इत्थे माइनस हुण जिहड़े देश इत्थे पैंदे आ पूर्व दिशा दे विच ठीक है यानी कि साडा मान के चलो आ साडा ग्रीनविच ठीक है ग्रीनविच जिहड़े देश ग्रीनविच दे पूर्व दिशा विच होणगे उत्थे समा की होगा ਵਧੂਗਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਘਟੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਘਟੂਗਾ ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਨਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਵਾ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ हाँ जो स्थान ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में स्थित है उत्थे समय का की प्रभाव पऊगा समा घटूगा ते जे ग्रीनविच दे कोई देश पूर्व दे विच स्थित है उत्थे समय का की प्रभाव पऊगा उत्थे समा वधूगा क्लियर होगी ना गल ठीक है पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है हाँ ये भी कंसेप्ट समझ लो है ना 1 डिग्री ते जे असी 1 डिग्री मूव हुंदे आ जेकर असी 1 डिग्री आ सारियां की ने डिग्रियां ही ने ठीक है जेकर असी 1 डिग्री मूव होवांगे किन्ने मिनट का फर्क पैंदा वा 4 मिनट का ते जे असी अपने हाँ अगे हाँ जे असी 15 डिग्री मूव करांगे फिर किन्ना फर्क पऊगा 1 घंटे का ठीक है प्लस करते जाना वा ठीक है 1 घंटे का फर्क पै जाऊगा जे असी 15 डिग्री मूव होवांगे ठीक है ते जे असी 360 डिग्री मूव हो जाएंगे जे असी 360 डिग्री मूव हो जाएंगे ते 24 घंटे का यानी कि पूरे 1 दिन का फर्क पऊगा क्लीयर हो गई ना ते आ कंसेप्ट क्योंकि सानू पता नहीं सानू किन्ने डिग्री ते किन्ना समा पुछ लेना वा ये तुहानू पता होना चाहिए वा बस जे तुहानू आ पता ना भी 1 डिग्री ते 4 मिनट आ तुसी किसे भी डिग्री दे अकॉर्डिंग उत्थे टाइम तुसी कढ सकदे आ ते नाल तुहानू दिशा पता होना चाहिए जे पूर्व है ते समा वधूगा जे पश्चिम है ते समा घटूगा ते 1 डिग्री ते 4 मिनट का फर्क पैंदा वा 15 डिग्री मूव करांगे ते 1 घंटे का फर्क पैंदा वा 360 डिग्री मूव करांगे ते 24 घंटे पूरे 1 दिन का फर्क जिहड़ा वा पैंदा वा ठीक है भारत का मानक या मंत्र क्या है 82.5 डिग्री ये असीं अज तक ही पढ़ते आ रहे हैं ठीक है सो ये सी अज दा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा ते बहुत ही ज्यादा इंटरस्टिंग ठीक है ते अपने 3 चैप्टर हाँ आपां 3 चैप्टर कर चुके हैं ठीक है हाँ 2 चैप्टर कर लिया अपने 2 चैप्टर निबड़ गए ठीक है 2 चैप्टर अपने निबड़ गए आ तीजा जिहड़ा वा ओ मैं शुरू कर लिया सी थोड़ा जिहा बाकी रह गया ठीक है क्लास ज्यादा लंबी चल जानी है मिलते आपां पार्ट 4 दे विच NCERT पढ़ते रहो ठीक है कितों भी जियोग्राफी ना पढ़ो NCERT दे विचों जियोग्राफी पढ़ो मैं तुहानू वारी कहंदी है जे तुसीं पेपर क्लीयर करना वा क्लास नू शेयर कर दो मैं भी तुहाडे वर्गी स्टूडेंट ही हाँ ठीक है मेरे कोल जो भी मैं खुद पढ़दी हाँ जो मैं खुद मेहनत करदी ओही मैं तुहानू पढ़ा रही हाँ ठीक है NCERT वाल ध्यान दे लो जे तुसीं पेपर क्लीयर करना वा ते मिलदे आपां पार्ट 4 दे विच सत श्री अकाल सारिआं नू।